तो मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, तो मैं देखा ही भी नहीं। कल रात को ही पहुंचा चेन्नई। Okay. in trading. On the investment front, as usual, the stock market with Vivek team is very, very confident on our fundamentals, on our objectives, and how we want to create wealth. On that note, let me introduce this team. My name is Gautam Sikri, and I am part of the Stocks with Vivek team. Together, me and Vivek co-founded this group, Stocks Markets with Vivek. We both have an experience, combined experience of more than 25 years in the stock market. Vivek is the brain behind. I am kind of helping in the execution of all the ideas and concepts that we together create. Today's session is an excellent session where Vivek has worked out a lot of fundamentals that are driving the market in the very, very long run. The Samuel Banner chart that he is going to share today, he has worked on it for the last several months, and he has tried to identify various timelines where you can actually time the market and invest accordingly. और इसी बैनर जैसा हमने आपके साथ शेयर भी किया था, इसी चार्ट के बेसिस पर और इसी लर्निंग्स के बेसिस पर हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई भी किए थे जो राइज एंड शाइन के हमारे मेंबर्स के साथ हमने शेयर भी किए हैं, एंड दे आर डूइंग incredibly well. Today we are going to share that strategy with all of you on a very, very complimentary basis. Frankly speaking, make notes, ask questions in the chat box at the end of the session. Try and grab as much as possible. You're all part of our WhatsApp group. Ask questions there and keep on learning. Remember, hand holding तभी अच्छी लगती है जब आप लोग भी एफर्ट कर रहे हो तो लर्निंग के लिए. So on that note, we begin today's meeting. All the best to all of you, and may the markets be supreme and gifting for all of you. Vivek, all here. Okay, hello everyone, and very good afternoon. I am sure that you will love today's content, and it is going to be my secret recipe, one of my best recipe. मैंने शेयर किया था सबके साथ that it is going to be my ब्रह्मास्त्र. ये मेरा ब्रह्मास्त्र है जिसको फॉलो करके I am personally and I will do my best for my paid members also to make a lot of money with this. So I'm sharing the screen and we will start. Um, Gautam, we are able to see the screen. Yeah, Vivek, we are able to see the screen. Okay, so I Avi, we will are able to see start. your browser. Yeah, you can start with the PPT. Yeah, Okay. I'm starting with PPT. So before the PPT, I want to show you guys a small video, a 4 minutes video. So I'm just putting it on. क्योंकि जो 2020 में देखा एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं, मतलब दुख दर्द तो काफी है। क्या कुछ आपको 2020 और 2025 में समानता दिखती है और क्या अंतर दिखता है? उस गिरावट में और इस गिरावट में समानता क्या है, अंतर क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार हर हमेशा नया कहानी लेके आता है, गिरने के लिए भी, बढ़ने के लिए भी। गिरने के लिए, बढ़ने के लिए भी। तो वही एक एक्साइटमेंट है। कोई कोई दिन सेम नहीं। एवरी फॉल, एवरी राइज, हर 5 साल एकदम नया कहानी लेके आता है। और इंडिया के केस Guys, this is a 4 minute video and every word of it is very important to be listened. So be very focused and be very attentive in the whole of the session. I will not repeat again and please keep yourself on mute. There should be no disturbance and this is the do's and don'ts. Keep your tea or coffee or water and a pen and a paper with you to make some notes. There are some very important things which I want to tell you. So no more disturbance even from my side. Be very attentive. इसमें तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हर 7-8 साल में इंडिया का साइज डबल हो रहा है जी, इकोनॉमिक साइज डबल हो रहा है। अच्छा, इंडिया अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक कैपिटल मार्केट है। मतलब 190 मिलियन पीपल पार्टिसिपेटिंग डीमैट अकाउंट्स, मे बी 150, 140 जो भी है, बट वी आर हेडेड टू बिकम द लार्जेस्ट मार्केट, लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो ये तो बहुत वाइब्रेंट जगह रहेगा और बहुत पैसे बनेंगे। पीछे बहुत पैसे बने हैं, आगे उससे ज्यादा बनेगा, ज्यादा स्पीड से, ज्यादा ज्यादा तो क्वांटम तो कोई डाउट ही नहीं है। अब सवाल है किसके थाली में कितना आता है ना, किसके झोले में कितना आता है, ठीक बात है। वो समझने का, उसके लिए आपको गेम सही खेलना पड़ेगा। वैसे तो बहुत है बाजार में। जैसे लास्ट 5 साल में
100 हमारे जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज में से डेटा दे रहा हूं मैं जी 138 लाख करोड़ बने सिर्फ 100 कंपनी में। सिर्फ तो कंपनियों में। हाँ, तो मतलब टोटल मार्केट निकालो तो 160 170 लाख करोड़ बना लास्ट टिल 24 19 to 24 जस्ट बिफोर प्री कोविड टू दिस। मतलब आप समझिए ये मतलब समझिए ये करीब 20 साल पहले करीब 15-20 लाख करोड़ होता था, करेक्ट, जो मतलब पूरा 10 गुना हो गया। तो आप समझिए यहाँ से मतलब आप एक 2034 का समझे ठीक है। 2035 में आई वोंट बी सरप्राइज कि मतलब डर लगता है बोलने में, लेकिन मतलब 500-700 लाख करोड़ बनेगा 5 साल के अंदर, इतनी वेल्थ बनने बनने वाली वाली है। 500-700 लाख करोड़, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ के आसपास की वेल्थ 2019 से 24 में बनी है। हाँ, उससे नहीं नहीं तो ये 5 गुना वेल्थ अगले 10 साल में 3 गुना में बोलो, मेरी हिम्मत नहीं उससे ज्यादा बोलने की। पर इतनी बहुत बड़ा पैसा बनेगा, बहुत बड़ा पैसा। अब सवाल ये है कि कौन सी कंपनी बनेगी और आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए गेम तो हो रहा है, खेल तो होगा और पैसे बहुत बनेंगे और लोग कमाएंगे भी पैसे, ठीक है ना। लेकिन हम कैसे किस ढंग से उसको अप्रोच करें ताकि हमारी जोली में भी हमारा ड्यू शेयर हमको मिले, हाँ एटलीस्ट वो बहुत जरूरी है। आप पूरे गांव में बारिश और हम सूखे रह जाएं। हम सुखी रह जाए। ऐसा ना हो। और उसमें एक सबसे बड़ी चीज क्या है, बाजार जो है ना, जैसे आप देखिए जो 5 साल पहले जैसे आप जैसे 2000 ये अपन 20 की बात कर रहे हैं ना, कोविड जो 20 में हुआ, करेक्ट करेक्ट, तो फरवरी में आई थिंक 25 तारीख के आसपास जो ऑल टाइम हाई था फरवरी में, बिल्कुल। और मार्च 20 में 20-25 दिन में पूरा गिर के 7,000 हो गए। 12,400 से 7,500 है ना, ये डेट एक ख्याल है, लेकिन एक महीने 40 पहले दिन में हुआ, हो गया था। है ना। तो अभी आप यदि फरवरी में देखते हैं तो बाजार डबल है, करेक्ट, फरवरी लेवल से बेली डबल है। यदि मार्च के हिसाब से देखें तो ट्रिपल है। एक महीने में इतना फर्क। हाँ, तो ये क्या है, करेक्टेड मार्केट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन। एक मिनट, करेक्टेड मार्केट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, यानी कि गिरे हुए बाजार में ही सबसे ज्यादा पैसा बनता है, वहां से तक बनता है, वहां से बढ़िया पैसा। अगले 5 साल में 45,000 होगा निफ्टी। हाँ। ओ, तो ये 45 मतलब 45,000 को ऐसे पकड़ मत रखो आप, 44 हो सकता है, 46 हो सकता है, हाँ मतलब आसपास 45 के आसपास होगा। हम्म, तो ये जब होगा ना, हम क्या बोल रहे थे भूल गए। नहीं नहीं हाँ आप कितनी कितनी वेल्थ बन सकती है हाँ, तो उसमें। देखिए अभी आपका है 400 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, ओके। करेक्ट, तो 400 लाख करोड़ तो बनेगा ही बनेगा, मतलब मिनिमम, इफ नॉट, क्योंकि आपको न्यू इशू भी आएंगे। करेक्ट, तो मेरे ख्याल से करीब 500 लाख, 500 से 600 लाख करोड़ का एडिशनल मार्केट कैप विल बी क्रिएटेड। इतना मार्केट कैप नया बनेगा। हाँ, सिर्फ 6 साल के अंदर बोल रहा हूँ मैं, और उसके अगले 6 साल में इससे भी डबल होगा। तो मतलब कुछ बहुत बड़ा मतलब जश्न होने वाला है अच्छा, इंडियन कैपिटल मार्केट में। So hope you have liked the video and you have understood a bit of it. So now I'm starting with the presentation. So let's start. So these are my 3 quotes today. Understand the quotes. I hope they are quite meaningful for all of you. Vision, dynamism, entrepreneurship, clarity of thoughts, critical eye for details, hard work, and sincerity to duty will help make impossible possible. So the second one is God help those who help themselves. And the third one is why only few win in the stock market? Because though they do it differently from the crowd. I hope you are in line with what I say, and what these 3 quotes, they fall very true to the market participants. जो लोग इनको नहीं फॉलो कर सकते या इसमें कोई भी कमी है, वो लोग विन नहीं कर पाएंगे मार्केट के अंदर. So let's understand the market cycle, and please pay attention onto this. This market cycle is, what I want to show into the banner cycle chart. जो मैंने banner cycle का चार्ट अपने पेड ग्रुप में और फ्री ग्रुप में शेयर किया था और आप लोगों को बोला था कि आप अपनी समझ से इसको डिकोड करो और आपका डिकोडिंग और मेरी डिकोडिंग को कंपैरिजन करेंगे आफ्टर द वेबिनार. तो ये मार्केट साइकिल समझना ज़रूरी है. So after this market cycle is, for every 10 to 15 years. हम start करेंगे. So death and accumulation बहुत नियर होती है, तो हम डेथ से शुरू कर लें या accumulation से शुरू करें. डेथ का मतलब जब एक बहुत बड़ा क्रैश आता है और क्रैश का जो बॉटम बनता है या ड्यूरिंग द क्रैश टाइम्स होते हैं, वो डेथ पीरियड होता है.
2000 सन 2000, ईयर 2000, ईयर 2007, year 2020 were the years of death in the market. So after death, what happens is accumulation. जब एक बार bottom बन जाता है तो उसके बाद accumulation होती है. Smart money, it comes into the market, and smart people or fearless people start buying immediately after the death period. फिर उसके बाद एडवांसिंग की स्टेज आती है. एडवांसिंग की स्टेज तब आती है जब एक ग्रोइंग कंट्री के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है. फॉर एग्जांपल, जब बहुत ज़्यादा फियर था 2020 में, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ाया था, और तब से लेके वो अब तक अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाती गई है. जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाती है तो उससे इकोनॉमी रोटेट होनी शुरू होती है. व्हाई आई मीन टू से इकोनॉमी, इकोनॉमी होती है बेसिक कमोडिटी से, मेटल से, सीमेंट से, इन सारी चीज़ों से इकोनॉमी को एक पुश मिलता है. बिकॉज मेटल, सीमेंट, फिर पेंट में काम आगे आते, पेंट भी बिकता है, फिर उससे और रोजगार बढ़ता है, उससे पेट्रोल, डीजल, उससे घरों की चीज़ें, ईंटें, ब्रिक्स, वुड. सो द इंडस्ट्री स्टार्ट्स अ मूवमेंट व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग. सो एडवांसिंग स्टेज गवर्नमेंट स्टार्ट करती है. एडवांसिंग स्टेज के बाद ग्रोथ स्टेज आती है, जब न्यू केपेक्स साइकिल शुरू होता है. सो लास्ट 3-4 साल में बहुत केपेक्स साइकिल इंडिया में हुआ है. इन टर्म्स आई वुड से ईएमएस, जैसे ईएमएस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं. आप अखबार पढ़ते होंगे जिसमें मैं भी कुछ शेयर करता रहता हूँ. सैमसंग एंड एप्पल फोन फ्रॉम लास्ट 2-3 years इज बीइंग मेड इन इंडिया, and they are now the biggest source of foreign this money, FDIs, and also it is the source of earning dollars to the country. So from after the growth stage there is a maturity stage. Maturity stage तब आती है जब मार्केट का साइज बड़ा हो जाता है. एक मीडियम टर्म में, जब 3-4 साल के बुल रन के बाद मार्केट एक बड़े साइज पे पहुंच के वहां पे हांफने से लग जाती है या एक्सपेंसिव हो जाती है. और मेच्योरिटी के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन आती है. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वहां पे FIIs and big fish, they try to hand over their profits to the retailers, और वो रिटेलर्स को चिपका के मार्केट नीचे आ जाती है, और फिर ये डिक्लाइन शुरू होता है. डिक्लाइन के बाद डी जनरेशन शुरू होता है. अभी तक डी जनरेशन हमारी मार्केट में आफ्टर कोविड शुरू नहीं हुआ. अभी तक हमारी मार्केट में सिर्फ डिक्लाइन शुरू हुआ है, जो लास्ट 6 महीने के अंदर हम विटनेस कर रहे हैं आफ्टर सितंबर. डी जनरेशन शायद अगले 1-2 साल के बाद शुरू हो, और डी जनरेशन के बाद फिर डेथ आती है एंड फिर एक्यूमुलेशन आता है. सो ये साइकिल चलता रहता है. सो हु वाज सैमुअल बैनर? I will explain. He was an American farmer in the year 1980s, in 1880s, sorry, 1800 सेंचुरी के अंदर है. वो 1880-85 के अंदर उसने अपना ये सारी रिसर्च वर्क लॉन्च किया था. He was an American farmer come economist who invented a wonderful formula of cyclical price journey of lows and highs of his country's economy by formulating it on a chart इन 1875 का उसका ये चार्ट बना हुआ है. सैमुअल बैनर पब्लिश्ड अ बुक ऑन फ्लक्चुएशंस इन द US economy. He was sharp enough to understand the pattern or behavior of the economy and cleverly put that on chart for everyone. He presented 3 main cycles in his treatise. The first cycle, 8, 9, 10 year cycle of pig iron price peaks and down. 8, 9, 10 का मतलब उसने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया था. ये आप जो थर्ड लाइन है ना, इसकी फोटो खींच लो या नोट कर लो अपनी पेपर पे. 8, 9, 10, 11, 9, 7. So 11, 9, 7 year cycle of pig iron was to find the lows, and a 16, 18, 20 year cycle of financial panics. दिस इज व्हाट इसने अपने सिस्टम को 3 डिफरेंट नंबर्स के अंदर चार्ट पे समझाऊंगा.
name was his book was Banner Prophecies, Future Ups and Downs. अब हम इन 4 लाइनों को समझते हैं विद द चार्ट. सो इस पूरी लाइंस का अगर आप फोटो खींचना चाहो तो फोटो खींच लो अपने फोन से. मैं 1 मिनट वेट करता हूँ और फिर मैं आपको चार्ट पे लेके आता हूँ. मैं तब तक बोलता हूँ जब तक आप फोटो खींचते हैं इसकी. टेक अ पिक्चर ऑफ दिस. लाइन ए, ईयर ऑफ स्टार्ट ऑफ पैनिक्स, क्रैश, रिसेशन after an extra euphoric long bull run. Line B means on the chart year of exhaustion or euphoric high after a long bull run from the bottom. Line C means year of economic lows, bottom formation of the commodities and stock market, and time of extreme fear. So this is the line C is also, time to enter the market with full force. So line D, so there is no line D in the chart. I have framed my line D myself while I was decoding. Line D बता देता हूँ आपको, चार्ट में भी बताऊंगा कि what do I mean by chart line D in the chart. So these are the figures between the line B and C, which depicts we are halfway done to the bear run or bull run. So इसकी अगर आपने फोटो खींच लिया तो अपने सामने इसको रखो और मैं अभी इसको escape करके I'll take you to the chart. Gautam, are you able to see the chart, Banner cycle chart? Yeah, the picture is clearly visible. Periods when to All make right. money. All right. So we start with A. हम A से शुरू करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके साथ जो बताता ए लाइन वाइज लाइन बैक टेस्टिंग करूंगा आपके साथ. आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें. देयर वर ए के ऊपर लिखा है ईयर 1927, 1945, 1965, 1981, 1999, 2019, 2035, 2053. So this means 1, 2, 3, 4, 5, 6. On this chart, line A में 6 different years are now past, and 2 different years, which are 2035 and 2053, will be of future. इन सालों के अंदर 1885 1875 में प्रिडिक्ट किया गया था बाय सैमुअल बैनर की एक मार्केट टॉप लगेगा कमोडिटीज का और डिफरेंट सेक्टर का एंड इकोनॉमी का, और यही साइकिल रिपीट होगा. अब मैं आपको पहले ये चार्ट को समझाता हूं. So this chart was made by understanding the patterns of the life, of the universe, of the nature. अब मैं आपको बताता हूं कि our life revolves around certain patterns. For example, हमारी लाइफ स्पैन कितना है? 70 to 85 years. Sun every day rises from the east and sets in the west. There are 7 days in a week and they are repeated for infinity. हम लोग मर जाएंगे तभी भी संडे मंडे ट्यूसडे आता रहेगा until संडे, फिर मंडे ट्यूसडे आ जाएगा. There are only 12 months in a year and they are repeated. And there are leap years after 4 years only and they are repeated. There are 4, 5 weathers only, like spring, summer, fall, winter, and they are repeated. And monsoon also, it is also repeated. So if you understand what I am saying very minutely, similarly, the economic cycle also gets repeated. So this is what I wanted to share with everyone. Now let's understand how it. पहले तो आपको पूरा चार्ट समझाता हूँ, फिर ए लाइन से बैक टेस्टिंग शुरू करते हैं मेरे साथ. ये भाई साहब बोलते हैं सैमुअल बैनर. अगर आप देखेंगे राइट पे 1875 पे उसके साइन हुए हैं और ये उसने चार्ट बनाया हुआ है, एंड ही इज डेड, ही इज नो मोर. सो एंड दिस चार्ट इज मैजिकल. इट इज हैविंग अ 95% एक्यूरेसी. अब इसको समझते हैं. वो भाई साहब बोलते हैं 1927 से 1945 के अंदर 18 ईयर्स का फासला होता है, 18 ईयर्स का डिफरेंस होता है. वो बोलते हैं आफ्टर एवरी 18, 20 and 16, then again 18, then again 20, then again 16, then again 18, then probably again 20, then again 16, and so on, there will be panic highs in the world economy.
अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप लास्ट में क्वेश्चन मेरे से पूछना, मैं रिपीट करता हूँ। द पैनिक ईयर्स वर marked by Samuel Banner as 1927, 1945 after a distance of 18 years, 20 years and 16 years. Now with this आप नोट करें 1927, 1945, 65, 81। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ डाउ जोन्स का। मैं डाउ जोन्स का चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इंडियन स्टॉक मार्केट was started in 1880 only, and American stock market is there since 1880। तो अमेरिकन स्टॉक मार्केट पुरानी है और इंडियन स्टॉक मार्केट इज ओनली 45 ईयर्स ओल्ड, जिसमें 1880 में मेरे ख्याल से या 1878 में बीएसई शुरू हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड एनएसई शुरू हुआ था 1991। सो डेटा इज नॉट अवेलेबल। Therefore, I'm going to show you three different indices today. One is Dow, so that we can discuss all 1927 and until 1999. And after 99, I'm going to share, do the back testing on Nifty and Nifty small cap 100. So let's understand line A first. So I'm taking you to this Dow chart. Those who do not know what is Dow, Dow is the top 30 companies index of American companies। जैसे हमारा सेंसेक्स है वैसे डाउ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने मार्क किया हुआ है इसके ऊपर ए। ए मींस दी चार्ट के ऊपर जो ए लिखा हुआ है उसमें उसने डिपिक्ट किया था कि एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा, पैनिक आएगा। तो ये डाउ का 1927 का चार्ट लगाया मैंने। अगर आप देखेंगे 2 साल के बाद 1927, वाई आई से 90-95% एक्यूरेट है। तो जुलाई 29 में एक हाई लगा और हाई लगने के बाद डाउ का इंडेक्स, मतलब अमेरिकन इंडेक्स ही 90% टूट गया। इंडेक्स 90% टूटना मतलब स्टॉक 95, 93, 99% तक गिर जाते हैं। इसका मतलब अगर आपने कहीं टॉप पे पैसा लगाया हो 1929 के अंदर या 27 के बाद, तो वो पैसा पूरा किल हो गया और वो पूरा 3-4% रह गया, 90-95% उड़ गया। Second year was 1945। 1945 एग्जैक्टली अप्रैल 1946 के अंदर एक फॉल आया विच वाज 25% डाउन, 25% फॉल आया। और ये 1946 से लेके 1949 तक, कहने का मतलब 3 साल मार्केट नहीं चली। सो ये 1945 है। थर्ड वाज 1965 जो चार्ट में लिखा है। एग्जैक्टली जनवरी 1966 से यहाँ पे हाई लगा, इंडेक्स वैल्यू 1000 की थी और 37% गिर गया। और 66 से 1970 तक 4 साल तक इंडेक्स 37% का लो लगा के फिर चलना शुरू हुआ। सो दिस वाज 1965। देन वाज 1981 का क्रैश। 1981 में इंडेक्स एग्जैक्टली अप्रैल 81 से 1981 से गिरना शुरू हुआ और 26% गिर गया ऊपर से नीचे, और उसके बाद इसने एक हाई बनाना शुरू किया। देन ईयर 1999, दिस वाज द डॉट कॉम बबल। इसमें मैं आपको अभी निफ्टी भी दिखाऊंगा, डाउ भी दिखाता हूँ। सो डॉट कॉम बबल जब शुरू हुआ तो वहां की भी टेक कंपनीज थी, वो भी गिरी। 37% इंडेक्स गिर गया राइट फ्रॉम जनवरी 2000, एंड इट मेड अ लो इन जनवरी 2003। कहने का मतलब 3 साल इंडेक्स भी नहीं चला और मार्केट ने रिटर्न भी नहीं दी और कंपनीज ने भी रिटर्न नहीं दी। ना 2000 से हम एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं। सो 2000 में यहाँ पे दिस इज द चार्ट, ये मैंने ए मार्क किया हुआ है। ए मींस लाइन ए ऑफ द सैमुअल बैनर चार्ट। 54% निफ्टी अपने हाई से गिर गई थी और एग्जैक्टली अमेरिकन मार्केट के साथ साथ चली थी। जनवरी 2000 से गिरनी शुरू हुई और 2001 में इसने लो लगाया। इसने लो जल्दी लगा दिया निफ्टी ने। बेसिकली लो 2001 में लगा दिया और 2001 से लेके 2003 तक 2 साल कोई रिटर्न नहीं दी, विच इज दिस पॉइंट। नीचे अगर आप देखेंगे जुलाई 2001 टू जुलाई 2003 इसने कोई रिटर्न नहीं दी। फिर इसके बाद क्रैश आया 2007 का, वो पर लाइन बी में है, वो मैं आपको सेपरेट दिखाता हूं। हम लाइन ए का क्रैश देखते हैं जो कि 2019 का है।
So instead 2019 it happened 3 months late during 2020 March. मेरे हिसाब से 2019 में हो जाना चाहिए, बिकॉज जो रीजन था फॉल का, अगर आप सबको याद होगा तो चाइना में नवंबर से ही एक ऐसी बीमारी आ गई थी जिसका इलाज नहीं हो रहा था, और हम सारे टीवी पे देख के हंस रहे थे। हंसते 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 वो बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल गई, जो एक रीजन बना पूरे वर्ल्ड की मार्केट क्रैशेस का। सो फॉर मी द प्रोडिक्शन डन इन 1875 वाज बैंग ऑन फॉर ईयर 2019, जो कि 2020 में ये मैंने ए मार्क किया है। हम 36% निफ्टी में ऊपर से गिर गए। सो दिस इज द बैक टेस्टिंग ऑफ लाइन ए। नाउ आई विल ब्रिंग यू टू द लाइन बी। जस्ट अ मिनट। हाउ डू वी टेक दिस? इधर हो जाए, इसको ऊपर, एक मिनट। Are you able to see the banner Samuel chart again? हाँ दिख रहा है। Okay. So we come to line number B. So line number B says years of good times, high prices, and the time to sell the stocks and values of all kinds. इसका मतलब ये चार्ट बोल रहा है कि जो भी कमोडिटीज हैं, स्टॉक मार्केट है, कमोडिटीज में शाइनी मेटल भी आ जाता है, आयरन एंड स्टील भी आ जाता है, सिल्वर गोल्ड सब आ जाते हैं शाइनी मेटल्स में। फिर आपका स्टॉक मार्केट आ जाती है, फिर वीट, कॉटन एंड अदर इंपॉर्टेंट कमोडिटीज ऑफ द वर्ल्ड आ जाती हैं। तो वो ये भाई साहब बोलते हैं कि ये एक बड़ा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बीच में एक ये छोटा ट्रायंगल है। तो मैं आपको पहले एक बार पूरा चार्ट फिर से बताता हूँ। मैंने आपको ए लाइन अच्छी तरह समझा दी थी, अब मैं लाइन बी समझाता हूँ। ये बोलते हैं कि आफ्टर 8 9 10 years there is a top in the market which is sometimes, when it is in between the bigger triangle. In the bigger triangle there is a smaller triangle. अगर आप देखेंगे 1924 से 1927 और 1931 तक एक बिगर ट्रायंगल है, और बिगर ट्रायंगल के एग्जैक्टली 1 ईयर नीचे या सेम ईयर में एक छोटा ट्रायंगल का टॉप बन रहा है। So this is 1927, this is 1926, this is 1945, this is 1945 again, 1965 ये 3 साल पहले बन रहा है, 1981 ये 1 साल पहले बन रहा है, 1999 ये सेम ईयर बन रहा है। तो एक बिगर ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल है, जिस छोटे ट्रायंगल का जो टॉप है वो या तो 1 साल पहले बन रहा है बिगर ट्रायंगल के टॉप से, या वो 3 साल पहले बन रहा है, या वो सेम ईयर बन रहा है। इसका मतलब समझाता हूं। तो ये बोलते हैं कि हर 8 9 10 साल के बाद इकोनॉमिक साइकिल रिपीट होता है, और बॉटम से जब ये टॉप लगता है तो 8 साल के बाद 1926 के 8 साल के बाद 9 साल के बाद 1935 में एक फिर टॉप लगेगा, 1935 के 10 साल के बाद 1945 में फिर टॉप लगेगा, फिर 8 साल के बाद 1953 में फिर टॉप लगेगा, फिर 9 साल के बाद 62 में फिर टॉप लगेगा। ऐसे 8 9 10 8 9 10 8 9 10 साल के बाद टॉप लगेगा। अब मैं पूरी बैक टेस्टिंग इसकी नहीं करता, मैं इसकी बैक टेस्टिंग सिर्फ इंडियन मार्केट में करता हूँ 1999 से। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बड़ा साइकिल भी, इसका जो क्रैश का है वो भी 1999 का है, और इसका जो छोटा सर्कल, छोटा ट्रायंगल है उसमें भी 1999 है। तो मैंने अभी आपको निफ्टी में 1999 का दिखाया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप में। सो वी गो टू निफ्टी स्मॉल कैप। अच्छा, निफ्टी स्मॉल कैप में डेटा नहीं है 1999 का, हम निफ्टी के अंदर ही देखते हैं। तो मैंने आपको अभी दिखाया था कि 1999 में ये 54% निफ्टी गिर गई थी। तो हम अगले साल का देखते हैं, उसके अंदर अगला साल है
2007. सो इफ यू सी लाइन बी में, ये जो मेरा कर्सर है, ये 2007 में एक टॉप डिपिक्ट कर रहा है इन बिटवीन दीज टू बिग क्रैशेस, ये टॉप डिपिक्ट कर रहा है। तो 2007 का तो आपको पता ही है कि बहुत बड़ा क्रैश है। सो लेट्स सी 2007 में निफ्टी स्मॉल कैप को पहले देखते हैं कि उसने क्या किया था। तो 2007 मींस दिस इज द टॉप। ये अगर आप देखेंगे, इंडेक्स क्रैश्ड बाय 77%। सो ए एंड बी मैंने इसलिए लिखा कि जो ट्रायंगल का बड़ा हेड लग रहा है वो भी दो, नहीं वो सिर्फ इसी में लग रहा है, सॉरी, दिस इज ओनली फॉल्स फॉर बी, आई विल करेक्ट इट। ये सिर्फ बी में फॉल करता है, या तो बी बोलता है कि 2007 में मैंने अभी आपको दिखाया था, विच इज द सेंटर लाइन ऑफ द चार्ट, एक बड़ा क्रैश आएगा। और एग्जैक्टली January 2008 means 1 month after 2007, a big crash came and it did not give time to any investor, जहां पे बहुत लोगों ने, जिन्होंने 2006 में, 2007 में, 2005 के मिड के बाद पैसा इन्वेस्ट किया था, एंड चाहे उन्होंने लोन पे उठा के किया था या अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट की थी, दे कुड नॉट सरवाइव दैट क्रैश। और 5 महीने में ये क्रैश 77% इंडेक्स में गिर गया था। इंडेक्स में अगर 77% गिरना मतलब अगेन स्मॉल कैप स्टॉक्स वाइप आउट होना बाय 90-95%। बढ़िया से बढ़िया स्टॉक जिसको ए ग्रेड कंपनी कहते हैं वो भी इंडेक्स के साथ 70-80% टूट जाता है जब ऐसा क्रैश आता है। सो वी कम बैक टू द चार्ट अगेन। इट सेड, नेक्स्ट चार्ट, ये बड़े नेक्स्ट ट्रायंगल, ये बड़े ट्रायंगल के अंदर जो बड़ा ट्रायंगल है जिसमें 2019 है, इसके अंदर 2016 में दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम आएगी, और 2016 से ये 2019 तक ऊपर भी जा रहा है। तो हुआ क्या यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। सी 2016 इज द मिडवे टॉप विच इज बिटवीन द बिगर ट्रायंगल एंड द higher top is 2019. So let's understand what happened in the midway. And 2019 में टॉप लगा तो निफ्टी गिरी, बट जो स्मॉल कैप है वो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, वो 2018, 1 साल पहले, और मिडवे के 2 साल के बाद, कहने का मतलब मिडवे उन्होंने 2016 लिखा है, तो 2016 के 2 साल के बाद और बिगर क्रैश के ऑलमोस्ट 1 साल पहले यहां पे टॉप लगा निफ्टी स्मॉल कैप का। और निफ्टी स्मॉल कैप फिर यहां से, ये रेड मार्क मैंने किया हुआ है, अगर आप देखेंगे 66.95%, मतलब 67% गिर गई। So just see the accuracy of this chart. This is nothing else but a pattern of how the economic cycle moves, and we should be aware of the economic cycle pattern. This is what I mean to say by today's webinar. So let's go further. ये 2016 से गिरती रही और ये इन्होंने बोला कि 2023 तक गिरेगी। अब ध्यान से समझो, 2016 के बाद ये नेक्स्ट टॉप कहां पे आ रहा है? इस ये टॉप के ऊपर कोई ट्रायंगल नहीं है, ये 2026 में आ रहा है। ठीक है, 1999 में ट्रायंगल के अंदर था, और ये ट्रायंगल भी 99, बड़ा ट्रायंगल भी 99 था, गिर गई। 2007 में ये ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के बाहर था और बहुत बड़ा क्रैश आया। अभी दोबारा ये 2026 ट्रायंगल से बाहर है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? आई मीन टू से इतनी गंदी मंदी आएगी, आप लोगों से झेली नहीं जाएगी स्मॉल और मिड कैप में। ऐसे स्टॉक्स में रहना जो स्टॉक्स अगले 10 साल में या 5 साल में या 8 साल में गिरने के बाद भी ऊपर आ जाएं, जो कंपनियां चलती रहेंगी। कहीं गलत स्टॉक्स में फंस गए आप, आइडिया, यस बैंक, Gensol Engineering, and like any shitty stocks you get stuck, you won't be able to recover your money forever. 2026 से मेरे हिसाब से एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो जनवरी से हो, चाहे वो मिड जून से हो, चाहे वो एंड से हो, और अगर ये चार्ट में एक्यूरेसी थोड़ी सी लेफ्ट राइट हो तो हो सकता है 2027 से हो। मुझको नहीं पता कहाँ टॉप लगेगा, बट 6 months बिफोर हियर एंड देयर 2026 एक टॉप लगेगा जिसका बॉटम 2028 लीप ईयर में लगेगा। 2028 इज अ लीप ईयर।
वहां पे हमको इन्वेस्ट करना है। इसके बाद में मैं दोबारा आऊंगा। सो 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी 2026, 27, 28, इन 3 सालों में कोई 2 साल बहुत खराब होने वाले हैं, स्पेशली फॉर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। एंड फॉर लार्ज कैप ज्यादा नहीं टूटेंगे, वो तो 30% पे क्रैश ही माना जाता है, पर वो चलेंगे नहीं। सो बी वेयर, आने वाले टाइम में 2025 के बाद मेरे हिसाब से पैसा नहीं बनेगा। वो भी बताता हूं आपको कैसे। अब आगे के छोड़ देते हैं, बिकॉज आगे 2026 के आगे 2034, 2043 इज फ्यूचर। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। लेट्स नॉट गो बियॉन्ड 2026। 2026 इज जस्ट 1 ईयर आफ्टर। अब हम बात करते हैं लाइन नंबर सी की। लाइन नंबर बी और सी के बीच में ये 254736, 254736, इसके बारे में मैं, ये लाइन डी है मेरी जो मैंने बताया है आपको, लाइन डी, इसके बारे में बाद में बताता हूँ। लाइन सी पे करते हैं। तो लाइन सी में सैमुअल बैनर बोलते हैं कि हर 7, 11 और 9 साल के बाद, इफ यू सी एट द बॉटम ऑफ द ट्राइंगल, 7-11-9, 7-11-9, 7-11-9 is repeating time and again, and this is what the economic lows years are. इसका मतलब ये ईयर ऑफ फियर है, ये ईयर ऑफ डूम्सडे है, ये ईयर ऑफ डेथ और बॉटमिंग आउट है। जब डेथ होती है तो 1999 में डेथ हुई और 2001 में जाके बॉटम आउट हुआ। 2020 में डेथ हुई, लकीली बॉटम 2020 में ही लग गया। उसके बारे में बताऊंगा कि जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, मैं भी बताता हूं। सो इन दी ओल्डन ईयर्स मतलब 50-100 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, तो रिवाइवल के लिए 3-4-5 साल लगते थे। बट आफ्टर 2000 वी हैड ऑल द टेक्नोलॉजी, वी हैव ऑल द मनी, the world GDP or the world economy is much larger after every 5 or 10 years, because of which the revival is very fast. So I give you one example. अगर सुनामी जापान में जो कुछ साल पहले आई थी, 10-11 साल पहले, तो उन्होंने 1.5-2 साल के अंदर जापान रीबिल्ड कर दिया था। अगर यही सुनामी कहीं 90-100 साल पहले आई होती तो जापान को सिमिलर स्पीड पे रीबिल्ड करने के लिए 4-5 साल लग जाते, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो सिंस वी आर राइजिंग अप इन द टेक्नोलॉजी, वी आर राइजिंग अप in the fastness to do everything, that is why every time there is a crash or there is a fall, the time of revival is being reduced. So ईयर 1999 में जो क्रैश आया था उसका बॉटम 2003 में लगा था। वैसे बॉटम 2001 में लग गया था, बट 2 साल 2001 से 2003 तक मार्केट साइडवेज हो गई थी। तो कहने का मतलब 2 साल में बॉटम लगा और 2 साल साइडवेज रही, मींस 4 इयर्स। 2007 के बाद जो 2008 में फॉल आया, उसका बॉटम 2008 में ही लग गया था और 2009 से मार्केट पिकअप होनी शुरू हुई बेसिकली। तो ये 1.5 साल का ही क्रैश था। 2020 का जो क्रैश था, ये 3 महीने में ही बॉटम, 1 महीने में ही बॉटम लग गया और मार्केट ने सेम साल ही वी रिकवरी दे दी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने पार्टिसिपेशन कर दी थी immediately to build infrastructure so that we can take up our economy. So you can understand what I am saying कि कितनी फास्ट क्रैश आगे हमारे जब क्रैश आएंगे तो कितनी फास्ट चलेंगे। बट वो वाले क्रैश कहां से फास्ट मूव होंगे, जब वो क्रैश बहुत देर के बाद आएंगे। अभी हमारा जो लास्ट क्रैश है वो 5 साल पहले ही था, तो अभी वाला जो बियर रन हो सकता है वो 2-2.5 साल का हो सकता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूं अभी चार्ट के थ्रू। तो आप ये लाइन सी तो समझ ही गए कि 7 साल, 11 साल, 9 साल के बाद बॉटम लगते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन इंडाइसिस के कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन इंडाइसिस के कॉन्टेक्स्ट में हम 2005 से शुरू करते हैं, क्योंकि 2005 से ही डेटा है, या निफ्टी का डेटा शायद 1996 से भी है। अब आप एक पेपर पे नोट करें, ये चार्ट बोल रहा है कि 1996, 2005, 2012 और 2023, ये 4 साल का डेटा ही है हमारे पास। 2032 अभी आया नहीं है और 1985 का डेटा एग्जिस्ट नहीं करता ट्रेडिंग व्यू पे इंडियन इंडाइसिस में। तो 4 साल 1996, 2005, 2012 एंड 2023 में बॉटम लगा था। अब हम इन बॉटम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हम उसका मजा देखते हैं। एंड व्हाई आई से दिस चार्ट इज मैजिकल, एंड व्हाई आई से दैट दिस चार्ट इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी फॉर मी एंड फॉर माय मेंबर्स। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय बैक टेस्टिंग। अब हम देखते हैं 1996 में क्या हुआ था।
So we go to Nifty chart. So 1990, so ये रहा 1996 here. So 1996 की बजाय 1998 में एक साइडवेज के बाद लगा ये बॉटम, एंड ये मैंने मार्क नहीं किया हुआ तो मैं ये मार्क कर देता हूँ, एंड वी से so approximately the market went up by 1 second. So this is not a very big 96 का जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये बड़ा तो है 151%। 1996 के बॉटम से 1996 में सॉरी बॉटम लगना था, बट क्योंकि इंडिया तब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था तो ये 1.5 साल के बाद बॉटम लगा, और जुलाई 1998 से निफ्टी 158% बढ़ गई अंटिल 2000। सो कहने का मतलब 1.5 से 2 साल में 150% निफ्टी बढ़ गई, फिर 2000 का क्रैश आ गया। सो द सेकेंड अपसाइड इज 2005, 2012 एंड 2013। नाउ 2005 एक क्रैश आया, 2003 का बॉटम लगा, और 2005 से मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। व्हेन आई से 2005 तो बेसिकली ये 2004 में एक छोटा सा बॉटम लगा हुआ है, और मैंने यहाँ से निफ्टी में मार्क किया है। तो देयर वाज एन अपसाइड इन द निफ्टी एग्जैक्टली एज पर द चार्ट बाय 400%। व्हेन निफ्टी गोज 400%, दैट मीन्स निफ्टी स्टॉक्स कैन गो, few stocks of the nifty can go 6-7% or 6-7 times also, मतलब 600-700 times। सो 2005 का बैंग ऑन चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्शन है। अब हम इसकी स्मॉल कैप पे चेक करते हैं। 2005 में स्मॉल कैप 2004 से ये मैंने मार्क किया है 730%, कहने का मतलब 7.3 टाइम्स इंडेक्स बढ़ गया। अगर इंडेक्स 7.3 टाइम्स बढ़ जाता है तो कुछ स्टॉक्स 15-20-30 गुना भी हो जाते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैं आगे आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। तो झुनझुनवाला ने 2003 में 18 करोड़ का टाइटन खरीदा था। कुछ लाख रुपए का विजय केडिया ने सेरा सैनिटरी वेयर खरीदा था। विजय केडिया ने सेरा सैनिटरी वेयर को 2018 में आफ्टर 15 2018 नहीं 2023-24 में आफ्टर कीपिंग इट फॉर 20 ईयर्स बेचा। उसको एक स्मॉल कैप बना के उसने एक माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट की थी। इन्होंने भी एक माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट की थी टाइटन, और वो तो एक लार्ज कैप ही बन गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लाइन सी के बारे में बात कर रहे हैं। लाइन सी में डिपिक्ट कर रहे हैं कि वो बॉटम ईयर्स हैं, और बॉटम ईयर्स पे अगर आप हैवी इन्वेस्टमेंट करते हो अच्छे स्टॉक्स में तो कैसे पैसे बनते हैं, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। सो आफ्टर 2005 द ईयर इज 2012। अब हम बात करते हैं, आपको याद होगा ना लाइन सी में, मैं फिर दिखा देता हूँ कि भूल ना जाना। ये 2012 का बॉटम लग रहा है, और 2012 के बाद 2023 है। तो सैमुअल बैनर बोल रहे हैं ईयर्स ऑफ हार्ड टाइम्स, लो प्राइसेस एंड गुड टाइम टू बाय स्टॉक्स। ये क्लियर ही बोल रहे हैं कि मैं जो इकोनॉमिक साइकिल बता रहा हूं उसमें लाइन सी में हैवी पैसा लगा दो, बहुत पैसा बनेगा, यू विल मेक वेल्थ। तो 2012 का डिस्कस करते हैं, चार्ट निफ्टी का भी और स्मॉल कैप का भी। पहले हम स्मॉल कैप का करते हैं। तो ये 2012 की बजाय ये 2012 में जनवरी में एक लो लगा, और वो सेम लो घूम के 2013 में लगा, जुलाई 2013। तो 2012 का जो इनकी डिटेक्शन थी वो बेसिकली 6 महीने बाद हुई 2013 में। 2013 से स्मॉल कैप फिर से चलना शुरू हुआ जुलाई 2013 से, और 300% स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ गया 5 साल के अंदर 2018 के अंदर। कहने का मतलब 2012 से 2018 5 years ऑफ बुल रन, एंड 5 years ऑफ मैसिव बुल रन आफ्टर लास्ट मैसिव बुल रन ऑफ 2005 या 2003 से लेके 2008 वाला। अब हम निफ्टी में देखते हैं निफ्टी कहाँ तक बढ़ी 2012 में। ये निफ्टी का बॉटम लगा जनवरी 2012 में, और निफ्टी 100% बढ़ गई 2000, और 2014 से अगर आगे जाएं तो थोड़ी सी 2016 तक ये साइडवेज थी, और ये फिर 2018 तक बढ़ गई। कहने का मतलब स्मॉल कैप 5 साल चला, और निफ्टी दो पार्ट्स में चली 2013 से लेके 2014 तक, और 2014 से लेके 2018 तक। अब हम
लेटेस्ट वाला देख लेते हैं और फिर हम इसके बाद कुछ स्टॉक्स की बैक टेस्टिंग करेंगे, सो दैट यू कम टू नो दैट हाउ मैजिक हैपेंस एंड हाउ कैन यू डिवाइस अ सिस्टम टू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म फ्रॉम द मार्केट। अब हम देखते हैं 2023 का जो बॉटम लगा उसमें इंडाइसेस ने कैसा बिहेव किया। 2023 तो बड़ा लेटेस्ट है, आई एम श्योर जितने भी मेंबर सुन रहे हैं सबने पार्टिसिपेट किया ही है, मैंने भी किया और बहुत पैसे बनाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2023। सो 2023 ये लास्ट है, सी मैंने ऊपर लिखा हुआ सी, दिस इज निफ्टी। अगर आप देखेंगे जनवरी 2000 अप्रैल 2022 से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले से एक बॉटम लगा, जो कि बॉटम आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया वॉर का शुरू हुआ था, और एक निफ्टी 15-20% गिरी थी। 16,800 से समवेयर अराउंड 18,800 से समवेयर अराउंड 15,100 आई थी। ये यहाँ पे 15,100 का बॉटम लगा अप्रैल में, और यहाँ से ऊपर चलनी शुरू हुई, और ये 79.9 मतलब ऑलमोस्ट नियर टू 80% निफ्टी अप्रैल 22 से लेके सितंबर 24 तक बढ़ गई। कहने का मतलब 2 साल में निफ्टी 100% होगी। जब ये 2 साल में निफ्टी 100% हुई तो इसमें कुछ स्टॉक्स 3-3 4-4 गुना हो गए, जैसे कि बजाज ऑटो, जैसे कि ट्रेंड तो अभी आया है बट वो अगर निफ्टी 50 में देखोगे आप तो ट्रेंड 3-4 गुना हो गया। तो बहुत सारे स्टॉक्स 2-2 3-3 4-4 गुना भी हो गए, स्पेसिफिक स्टॉक्स, और कुछ स्टॉक्स सिर्फ 20-30% बढ़े। सो ऑन एन एवरेज निफ्टी 100% बढ़ गई। निफ्टी स्मॉल कैप देखते हैं, हाउ डिड इट बिहेव इन 2023। बेसिकली ये मैंने मार्क किया है कि एक क्रैश के बाद अगर आप बॉटम पकड़ लेते हैं, तो क्रैश शुरू हुआ कैप में 2018 से 2.5 साल 2.25 साल मार्केट स्मॉल कैप गिरती रही, गंदी तरह से स्टॉक्स टूट गए, चले ही नहीं। और 2020 के कोविड के बॉटम पे बनाने के बाद फर्स्ट लेग ऑफ तेजी आई इसकी 2020 से लेके 2022 तक 2021 तक, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स 250% बढ़ गया। बट सैमुअल बैनर ने 2023 ही बताया था, तो मान लो कि अगर हम उसको फॉलो करते हैं, वैसे मैं तो क्रैश के बाद इमीडिएटली घुस जाऊंगा, बट मान लो कि आपको इतनी नॉलेज नहीं है टेक्निकल्स की और आप बिल्कुल चार्ट के हिसाब से चलना चाहते हो, तो आप 2023 में घुसे तो ये देखो जनवरी 2023 नीचे शो हो रहा है, मंडे टू जनवरी 2023। जनवरी 2023 से मैंने मार्क किया है और इंडेक्स 126% बढ़ गया स्मॉल कैप। जब इंडेक्स 126% बढ़ा, तो इफ यू वर अवेयर और यू स्टिल आर अवेयर, तो देर आर फ्यू सेक्टर्स जिसमें कुछ स्टॉक्स ने 5-5 10-10 20-20 गुना रिटर्न दे दी। फॉर एग्जाम्पल सीडीएसएल, सीडीएसएल ने 5-6 गुना रिटर्न दे दी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने 2023 में 5-6 गुना रिटर्न दे दी। मोतीलाल ओसवाल जो एएमसी सेक्टर का है, इसने 8 गुना रिटर्न दे दी। औरो फार्मा 3 गुना रिटर्न दे दी। ये सारी चीजें मैं आपको शो करने लगा हूं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, कि चार्ट वट एवर द चार्ट डिपिक्ट्स, इट इज नॉट सैमुअल बैनर की खोज है ये, बट बेसिकली ये चार्ट को फॉलो क्यों करना चाहिए, बिकॉज दिस इज रिपीटिंग अ पैटर्न आफ्टर सर्टेन ईयर्स विच इज द लॉ ऑफ द नेचर। नाउ इफ आई कैन बेट यू कि बॉस आपको सन को ईस्ट से नहीं निकालना, आपको वेस्ट से निकालना है। इलॉन मस्क को भी बोल दो यार कि जो मर्जी करे, उसको सन को वेस्ट से निकाल दे। इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। Similarly, this law of ups and downs is also a factful point to follow. If you do not follow, अगर आप उल्टी साइड पे, लॉ की उल्टी साइड पे, कहने का मतलब 2018 में आप इन्वेस्ट करोगे और उसके बाद 80% अपनी वैल्यू गवा लोगे और बोलोगे यार मार्केट तो मेरे लिए बनी नहीं है, ये तो सट्टा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने तो अपना सारा उजाड़ दिया। सो दैट मीन्स you are not knowledgeable, you do not know what you are doing, you are ignorant, and you are not meant for the market. So be aware। जो मैंने आज के पहले पंच लाइन में लिखा था, God help those who help themselves. Now, I hope you understand. If you do not understand this pattern, then for you to make money from the stock market is very difficult. So, Nishant bhai asked me a question, Vivek, when is the next doomsday or next dooms year coming so that we do not participate? So, what I'm going to do is, I have only started stock SIP for next 3 years out of my whatever I can spare per month.
for next 3 years, because I know if I put bulk money, I can get stuck in next 1.5 year, and probably I will lose lot of capital by 2028. Instead, what I am doing, I am planning to amass lot of capital in my bank through my own sources and keep it in my bank. Do SIP, very small SIP, just for namesake. And by 2028, why I am saying by 2028, वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं एक बार। अगर आप ये चार्ट देखेंगे, 1999 में क्रैश आया, 2005 का बॉटम लगा, बट बेसिकली हमारा बॉटम 2001 में ही लग गया था। सो 2005, सो ये जो डी लाइन है ना, अगर आप डी लाइन देखेंगे, जिसको मैंने लिखा था कि दिस इज द मिडवे ऑफ बियर रन और बुल रन, अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो ये बोल रहा है 1924 से 1926, मींस 2 इयर्स में आप ऊपर जा रहे हो। अब हम वापस यहाँ यहीं से डिस्कस करते हैं। तो 2012 से 2016 में हम 4 साल में ऊपर जा रहे हैं, 2016 से 2023 में हम 7 साल में नीचे आ रहे हैं। जब 7 साल में नीचे आ रहे हैं तो मिड वे में, कहने का मतलब 2018 में हमारा स्मॉल कैप का टॉप लग रहा है और 2020 में हमारा टॉप लग रहा है लार्ज कैप निफ्टी का। तो हमने एक ही साल के अंदर बॉटम बना लिया। क्यों बना लिया? जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम 2023 में तो घुसेंगे नहीं, हम 2023 से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले घुसेंगे, क्योंकि 2023 में ये बोल रहा है कि बिल्कुल बॉटम लगेगा। बट मैं कह रहा हूं कि अब इतने लंबे क्रैश नहीं होते। इसने 1880 में ये बनाया था, इसको ये नहीं पता होगा 1880 से 2020 तक पूरा वर्ल्ड बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे हो चुका होगा। तो अब नेक्स्ट ये बोल रहा है कि 2032 में बॉटम लगेगा, और मैं बोल रहा हूं, और ये भी बोल रहा है कि 2026 से लेके 2028 तक बहुत बुरा साल है। तो मैं मान लेता हूं 2026 से लेके 2029 तक बहुत बुरा साल है, जो बियर रन आएगा। अब 2028 में मेरे पास बहुत सारे पैसे रेडी होने चाहिए मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में डालने के लिए। अब मैं 2028 में पैसे डाल दूंगा। 2028 में जो पैसे डालूंगा वो 2032 के बॉटम से जब चलने शुरू होंगे, तो ये ध्यान से देखिए, 2034 में ये बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टॉप लगेगा। दैट मीन्स 2028 से लेके 2034 तक स्मॉल कैप्स 10x 20x 30x हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो अब हम स्टॉक वाइज डिस्कस करते हैं। आप ध्यान से नोट कर लो, 2005, 2012, 2023, 2032, ये बोलते हैं कि इन इयर्स में पैसा बहुत बना है। अब हम कुछ स्टॉक्स लेके आया हूं, मैं आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। सबसे पहले अमर राजा। अमर राजा, एक मिनट। AREM। चलो अमर राजा बाद में देखते हैं, हम सोलर इंडस्ट्रीज करते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज, ये रहा। ओके, सो ये इन्होंने बोला कि 2012 से, अगर आपको याद हो, इन्होंने बोला कि 2012 से मार्केट ने बूम पकड़ना है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2012 में, ये मैंने यहां से मार्क किया है, जुलाई 2013 में ये सोलर इंडस्ट्रीज 155 रुपए का स्टॉक था, और 2018 में 155 से 1200 का स्टॉक हो गया। कहने का मतलब 7.2x। आपको याद है ना, चार्ट में 2012 में इन्वेस्ट करने को बोला उसने। सो आई गो फॉर कैपलिन पॉइंट। सो कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, ये जिसने भी ये लाइन मार्क की है प्लीज इसको रिमूव कर दें। 2014 में कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज का ये लो आप ध्यान से देखें, 39 रुपीज था। कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज इज अ स्मॉल कैप मल्टी बैगर कंपनी, ये फार्मा की कंपनी है। इसका लो 30 रुपए था 2014 में, और 2018 में इसका हाई 786 रुपए का है। सो दिस हैज गिवन 21.23 टाइम्स मनी। आप लोगों में से सारे लोग इग्नोरेंट हैं, नो नॉलेज वाले हैं, म्यूचुअल फंड्स में होंगे। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में वो पार्टिसिपेट करता है, मैं जीरो मेरी पार्टिसिपेशन है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में वो पार्टिसिपेट करता है जिसको नॉलेज नहीं है, जो
एस्पायर तो करता है, बट नॉलेज ना होने के कारण मार्केट में हैवी मनी लगाने से डरता है। जिसको कंपनी ढूंढनी नहीं आती है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी कैसे ढूंढते हैं, जिसको पेशेंस नहीं है, जिसमें हाजमा नहीं है, डाइजेशन नहीं है, जो 20-30% प्राइस बढ़ने के बाद कहता है राम राम भले, 20-30% निकाल लो नहीं तो ये पैसा भी चले जाएगा मार्केट से। सो अगर मेरा दूसरा पंच लाइन देखेंगे, who takes out money from the stock market? Only those who have certain knowledge and patience. Yeah. Vivek, So can you share क्या? the screen again? Can you share Yeah, the yeah, screen yeah, again? yeah. Share exit exit हो गई. अच्छा, share exit हो गया. How Yeah. do I do it? One second, one second. Mhm. One second, I have to call my son to do that. I am unable to Just see. share, Just just share पर देखना क्लिक करके. Zoom पे ही नहीं आ रहा बॉस. Hey, give me 1 second. Just give me 1 second. Huh? 1 second, please. Rohan, come fast. Share the screen. Fast, right away. Come fast. Come fast. Share, whatever. गौतम कौन सा बटन दब गया? मेरे को तो शेयर स्क्रीन ही मिल. हाउ टू शेयर द स्क्रीन राइट नाउ? हाउ डू वी शेयर? Don't worry, हो जाएगा, हो जाएगा. चलो, जब तक ये स्क्रीन शेयर कर रहा मेरा बेटा, लेट्स सी. आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? Okay. Now we can see the screen. ठीक है? Okay. So we will take 10 minutes to discuss few charts. ग्रैन्यूल्स. 10 मिनट में फटाफट फ्यू चार्ट्स देखते हैं कि पैसा कैसे बनता है अगर राइट टाइम पे लगाया हो. तो ये देखो, 2000 अप्रैल 2013 से ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स वाज आल्सो अ स्मॉल कैप फार्मा कंपनी. 2013 में इसका प्राइस 9 रुपए 20 पैसे था, और 2000 एग्जैक्टली 15 में ही, 13 से 15, 2 साल में ही 17 टाइम्स हो गया, 17x हो गया, टू गो इट टू 174. ये देखो मैंने मार्क किया हुआ है. बेसिकली 9 रुपए से इसने 166 रुपए का हाई लगा दिया, 17 गुना हो गया. फिर मैं मिसेस बेक्टर फूड इज लकीली माई टाउन कंपनी ओनली. मैं लुधियाना से हूँ और वो कंपनी भी लुधियाना से है, सो आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दिस कंपनी. दे हैव डन क्वाइट वेल. सैमुअल बैनर चार्ट बोलता है कि 2023 में पैसे लगाने चाहिए थे. अगर आप अप्रैल 2022 में देखो, इसका आईपीओ आया था समवेयर अराउंड अक्टूबर 2020, कोविड के बाद. इसका लो लगा अप्रैल 2022 में. 6 महीने पहले से ही जो मैं बोलता हूँ 6 मंथ्स हेयर एंड देयर फ्रॉम द चार्ट प्रिडिक्शन, 6 महीने पहले एक बॉटम लगा. बॉटम का प्राइस 243 था. 243 से 2024 के सितंबर हाई 2200 का प्राइस लगा. 243 से 2200 इज समवेयर अराउंड 8x. तो यहाँ पे मैंने 7x किया है. सो दिस इज समवेयर अराउंड 8x फ्रॉम द बॉटम. देन आई गो टू जेंसर टेक. अभी कुछ देर पहले मैंने लोगों से पूछा था कि क्या आप आरपीजी ग्रुप को जानते हैं, या आपने उसके बारे में स्टडी किया है, तो किसी ने जवाब नहीं दिया था. तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि कोई जानता भी है कि नहीं. So let's say what Zensar Tech did. Zensar Tech was a micro cap company in 2011. 2011 में इसने लो लगा लिया. सेक्टर बाई सेक्टर लो लगते हैं, कोई सेक्टर में पहले लो लग जाता है, कोई सेक्टर में बाद में. तो 6 महीने हेयर एंड देयर ऑफ द बॉटम. ये 2012 की प्रोडिक्शन है उसकी पैसे लगाने की, सैमुअल बैनर की. 2011 अक्टूबर में इसका बॉटम लग गया, और ये 24 रुपए के लो से 5 साल में 370 रुपए का हाई लग गया. कहने का मतलब समवेयर अराउंड 14-15x. 5 साल के अंदर 15x ड्यूरिंग अ बुल रन. आई थिंक इट्स लॉट ऑफ मनी. देन आई टेक यू टू मदरसन सुमी. मैं अदर सेक्टर्स के ना मैंने स्टॉक्स निकाले हैं, एंड मैंने तो सिर्फ 15-20 स्टॉक्स निकाले हैं. देर आर probably 500 stocks which have grown massively, तो पैसा तो बहुत बन सकता है. 2023-13 में 17 रुपए का स्टॉक था मदरसन सुमी, जो कि 2018 में 80 रुपए का हो गया. सॉरी, यस, या 93 रुपीज का हो गया. सो बेसिकली 2013 से 2018 तक 433%, 4.33x हो गया. कहने का मतलब 1 लाख को 4.5 लाख रुपए कर दिया.
विच इज लॉट ऑफ मनी। 2023 में देख लेते हैं इसने क्या किया। 2023 में ये 64 रुपए का था। 2023 में 64 रुपए से 2024 का हाई इसका 223 रुपए लग गया। सो ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना, 3 गुना in 1.5 to 2 years is lot of money. Now we go to Muthoot Finance. मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की एकमात्र पहली कंपनी। 2013 में 76 रुपए 70 पैसे 76.70 था। ये मैंने मार्क किया हुआ है। 5 साल के बुल रन में, 40 का बुल रन 4 साल का ही रहा। 2000 जुलाई 17 में टॉप लग गया, 6x हो गई। सो 4 years 6x, लॉट ऑफ मनी। नाउ अगेन इन 2023 915 का लो, और इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रही है। 2356 का हाई, सो ऑलमोस्ट 2.5x, लॉट ऑफ मनी। इतने पैसे 2 साल में बनने मैजिक मैजिक होता है। सीमेंस, नो वी गो टू सीमेंस। So 2013 Siemens low was 428, 2015 was 1597. 428 to 1597, almost 3.7x in how many years? In just 2 years. 2013 से लेके 2015 में। दोबारा ये 2020 से ही चलनी शुरू होगी, 2023 से पहले ही। वैसे 2023 में दिया था उसने, बड़ी 2020 से ही चलनी शुरू हो गई, बट हम 2023 से समझते हैं कि 2023 से कितनी बड़ी। तो जनवरी 2023 में 2826 का प्राइस था। 2826 से ये 8000 हो गई। इट इज ऑलमोस्ट लाइक 2.5 और 2.7x 2 साल में, 1.5 साल में। 2023 से लेके 2024, 2800 से 8000 is quite good money, is in front of you. Next is Eicher Motor. Eicher Motor was a good fundamental company, and if you had invested, क्योंकि Eicher Motor was a monopoly company, माचो मोटरसाइकिल यही बनाता था। अगर मुझे इतनी नॉलेज होती 2012 में, तो मैं इसको लेके बैठ जाता। अब मैं कोर कंपनीज, जैसे आइशर की कंपनी है, ऐसी कोर कंपनीज ढूंढ के ऐसे ही 10 साल के लिए बैठा हूं। जैसे आइशर ने किया, शायद मेरी कोर कंपनीज भी ऐसे कर दें। 2013 में इसका लो 214 था, और 2018 में इसका हाई 3500 का था। 14.86%, मतलब 15x। सैमुअल बैनर ने बोला 2012 में आप एंटर करो और हाई लगेगा 2019 में। 2018 में हाई लगा और 15 गुना पैसे हो गए। दोबारा से 2023 में इसका जो लो है 3000 का है। 2000 3000 से अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रही है 5300 का। सो ऑलमोस्ट 80% या 75% अभी भी 2023 में लार्ज कैप में पैसे बने हैं, विच इज इक्वल टू निफ्टी रिटर्न। सो दिस इज ऑल्सो लॉट ऑफ मनी इन 1.5 years। नाउ वी गौतम, यू कैन स्टॉप मी, आई हैव लॉट ऑफ स्टॉक्स। मैं 2-3 स्टॉक्स और दिखाता हूँ, मेरे पास 15-20 स्टॉक्स की और लिस्ट है। I think आई you शो can ओनली show us एक दो stocks और and then we should wrap up. We'll take नो 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 नो, couple of questions. वी आर नॉट रैपिंग अप, बिकॉज अभी 15-20 मिनट का और है। Then you उनो move मिंडा on to दिखाता हूँ। then you move on to Yeah, the yeah, yeah. content. ठीक है I'm ठीक going है to show ठीक है. this. I'm going to show this last stock. So Yeah. Uno Minda, it is one of the ancillary of auto ancillary company है। 2013 में इसका प्राइस 4 रुपए 10 पैसे था। 4 रुपए 10 पैसे से 212 रुपए का हो गया 2018 में। सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 56 टाइम्स। एंड देन फ्रॉम 2023 में 430 रुपए का था। 430 रुपए से आज भी 974 रुपए पे है, और इसका हाई जो लगा है वो 1200 का लगा है। सो ऑलमोस्ट 3x हो गई इन 1.5 years। सो आई हैव एम्पल कंपनीज टू शो एंड टू अम्यूज यू, टू अमेज यू एंड टू एस्टोनिश यू, बट लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। गौतम कह रहा है कि टाइम कम है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपको सारे दिखा दूं, बट लेट्स गो ऑन द प्रेजेंटेशन। सो आई हैव शोन यू इन द बैक टेस्टिंग, जब जब उसने बोला क्रैश हुआ, तो उसके 6 महीने से और 1 साल के अंदर अंदर क्रैशेस हुए। जब जब उसने लाइन बी में बोला क्रैश हुआ, उसके 6 महीने से लेके 1.5 साल के अंदर क्रैशेस हुए। जब जब उसने बोला बॉटम बनेगा, बॉटम बना, और उसके 6 महीने हेयर एंड देयर में वहां से रैली शुरू हुई। अब आगे क्या करना है, हम उस पर बात करते हैं।
तो हम ये डाउ जोन्स, निफ्टी एंड स्मॉल कैप ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको बताता हूं कि मेरी सोच कैसी है और आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। मैं हर बार फ्री वाले ग्रुप में और अपने मेन ग्रुप में कुछ एग्जाम्पल्स डालता हूं। जो अपना मेन पेड ग्रुप है हमारा राइज एंड शाइन, उसमें तो मैंने प्लेज किया है कि मैं एवरी संडे एक एग्जाम्पल डालूंगा कोर कंपनी का, और वो डिफरेंट एग्जाम्पल होगा पूरे साल के लिए। तो 52 एग्जाम्पल्स डालूंगा, सो दैट you all are aware and you all know how to handle your core portfolio for long term. And I'm going to share it with an example. Ramesh Damani made 180 crores in GRSE from just 20 crores and 68 crores from just 4.8 crores in Goldium International, both invested in year 2018 and 2019. He exited GRSE completely इन द ईयर 2024। कहने का मतलब 20 करोड़ रुपए उसने टोटल लगाए दो सन 2019 से लेके 2021 तक पार्ट्स में। 2.5 3 साल में उसने पार्ट्स में ऑन एन एवरेज प्राइस 200 रुपए की प्राइस पे उसने माल उठाया धीरे धीरे। अब बताता हूं कि उसने कैसे माल उठाया। वो मार्केट में 1990 से है और वो एक डिसाइपल है अपने बड़े भाई का, जो कि राधा किशन दिमानी है, और लेट श्री राकेश झुनझुनवाला का। और 20 30 साल लगाने के बाद, 28 साल लगाने के बाद उसको मार्केट के ट्रेंड समझ आ गए हैं। उसने ट्रेंड भी समझ लिया, सेक्टर भी समझ लिया, और राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कर ली, और राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी समझ ली। तो उसने 20 करोड़ लगाए और 2024 में एग्जैक्टली एट द टॉप वो 200 से 220 करोड़ लेके एग्जिट कर गया। ये मैं आपको अभी ट्रेंड लाइन पे दिखाऊंगा जो मैं आपको बता रहा हूं। Mukul Mahavir Agarwal turned 1,000 crores to 6,000 crores in 15 months only, from September 2023 to January 2025, half of the bull run। इसमें मैंने रमेश दमानी में वन बिग बुल रन रखा है। बिग बुल रन मतलब 2020 में बॉटम बजा और 2024 तक बुल रन का हाई लगा, और वो 4.5 साल चला। तो एक पूरा बिग बुल रन उसने 5 6 साल का रमेश दमानी ने कैरी किया अपना स्टॉक। गोल्डियम इंटरनेशनल तो वो अभी भी कैरी कर रहा है। क्यों कैरी कर रहा है, उसकी सोच की कॉन्टेम्पलेशन भी मैं आपको अभी बताता हूं। मुकुल महावीर अग्रवाल टर्न, ये मैंने आपको बता दिया। इसने 2023 के बुल रन में पकड़ लिया उसको, सितंबर 2023 में लिया इसको, और 2025 के हाई में इसने अप्रोक्सीमेटली जो 1,000 करोड़ लगाया था वो मेरे ख्याल से निकाल लिया, अपना प्रॉफिट, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली, और बाकी अपना जो प्रॉफिट है वो मेंटेन कर रहा है बीएसई में। और बीएसई कहीं जाने वाली नहीं है, डुओपली है। अगर ये 10 साल के लिए भी रख लेगा तो बहुत इसको डिविडेंड मिलेगा और बहुत पैसा आगे भी बढ़ जाएगा। Ajay Upadhyay turned 5.7 crores to 38 crores in 4 years in precision camshaft from 2021 to 2025। 2020 में बॉटम लगा, 2021 के अंदर बॉटम ऑलमोस्ट कवर आ गई। अजय उपाध्याय भी 20 साल पुराना इन्वेस्टर है। इसको समझ आ गई कि एक स्मॉल कैप कंपनी जिसके अंदर इसकी समझ थी, इसने उस कंपनी के अंदर 5.5 करोड़ 70 लाख रुपए लगा दिए और अभी भी होल्ड कर रहा है, और 38 करोड़ रुपीस बना चुका है। So that means one full big bull run he carried। Ashish Kacholia turned 3.06 crores to 176 crores in beta drugs in last 6 years in just one big bull run। उन 2019 से लेके अभी तक बीटा ड्रग्स में 3 करोड़ को 176 करोड़ बना चुका है, और बीटा ड्रग्स में अभी भी ये है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका प्रूफ। एक बुल रन इसने कैरी किया और 17.5 करोड़ को 500 करोड़ बना दिया इसने इन लास्ट 10 ईयर्स इन शैली इंजीनियरिंग। लास्ट 10 ईयर्स का मतलब शैली इंजीनियरिंग में इसने 2015 में इन्वेस्ट किया था। 2015 में इन्वेस्ट करने का मतलब और अभी तक होल्ड करने का मतलब, इसने 2 बुल रन्स में एक हाई ग्रोथ कंपनी को कैरी किया है। अगर 2 बुल रन्स आप कैरी कर लो एक हाई ग्रोथ कंपनी, देन, और स्मॉल होनी चाहिए वो, तो 17.5 से 500 करोड़ रुपए का पैसा बन सकता है। दैट मीन्स ही कैरिड इट फॉर 2 बिग बुल रन्स। Now, Rakesh Jhunjhunwala bought Escorts in year 2013, a total of 1.25 crore shares at a price of 100 rupees for an approximately investment amount of 125 crores and made a whopping 10x in just 5 years। मैंने आपको अभी Escorts दिखाया भी था। तो 5 साल में राकेश झुनझुनवाला ने, क्योंकि उसके पास पीछे 25 साल का एक्सपीरियंस था 2013 से पहले, वो
1985 से इन्वेस्टिंग कर रहा है। उसने स्टार्टिंग 19 मेरे ख्याल से 78 से शुरू कर दी थी और बल्क इन्वेस्टिंग 1985 से, तो उसके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस था। तो उसने जब मार्केट गिरी, उसने 2003 में मार्केट गिरी तो उसने बल्क इन्वेस्टमेंट टाइटन में कर दी। 2012 में जब बॉटम लगा तो उसने एस्कॉर्ट्स में और क्रिसिल में बल्क इन्वेस्टमेंट कर दी। तो मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूँ एस्कॉर्ट्स का। तो उसने 5 साल में 10x कर दिया, 125 करोड़ को 1250 करोड़ कर दिए, 50% धीरे धीरे बेचता रहा। अभी भी इसके पास 50% वो स्टॉक है। इनके प्रूफ्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मधुसूदन केला, ये लास्ट एग्जांपल है। Turned 300 crores invested in Choice International. Choice International is a broking company और AMC company in year 2022। 2022 में ही इसका जुलाई में या पता नहीं मई में से सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट करोगे सही कंपनी के अंदर तो पैसे बनेंगे। सो 3 years इज अ साइकिल ऑफ अ बुल रन। आप सिर्फ 30%, अगर आप 10 साल टिकेंगे एक पूरे साइकिल में, तो आपकी जो वेल्थ जनरेट होगी वो 30% टाइम्स में होगी। और वो 30% टाइम इस वाले का एक डेकेड का हाफ, तो 30 में से 20% निकल चुका है। सो नेक्स्ट जो आएगा वो 2032 टू 2034 आएगा एज पर द चार्ट। Your first bull run will make you rich. Your second bull run will make you wealthy. Your third bull run will make you super wealthy, even for next generations, आपकी next generations भी बहुत enjoy कर सकती हैं। If you enter during the end of the euphoric times, अगर आप वो triangle के near to the top investment करोगे, chances are that you will not make money for good 5 to 8 years, as you will have to ride a down cycle first and then up cycle to reach to your buying price, and then which is a period of around 5 to 6 years, and then probably you will make money। कहने का मतलब, अगर आप आज पैसा लगाते हो और वो स्टॉक बढ़ता ही नहीं है और 2026 में मार्केट गिरने लग जाती है और आप उसमें 30 40 50% एक स्मॉल कैप में टूट जाते हो, तो वो पूरा राउंड घूम के 2028 में अगर वो प्राइस आया तो आप उसमें निकलने की कोशिश करोगे। आप 3 साल आपकी अपॉर्चुनिटी खराब कर लोगे और मार्केट को गालियां ही निकालोगे। सो डू नॉट डू दैट, अंडरस्टैंड दिस साइकिल। This banner chart has 90% accuracy, so believe in this chart and make it your best friend and be aware of the coming moves. Why should you introduce fresh money in 1 to 2 years before the bottom? जो बैनर चार्ट पे बॉटम लिखा है उससे 1 2 साल पहले क्यों करना है वो मैंने आप लोगों को बताया कि 6 6 साल का बियर रन नहीं चलता। वो 1880 से लेके 1927 तक चलता था। अब वी आर काइंड ऑफ डेवलप्ड एंड सुपर डेवलप्ड नेशंस, तो अब फास्टर टर्न अराउंड होता है, तो हमको 1.5 2 साल पहले ही पैसे लगाने हैं। Year mentioned in the line B is an alert of the end of euphoric times and the start of big trouble soon in the stock markets. Next doom's years is 2026 in the chart. So I have already told you, be aware, 2026-27 में कुछ ना कुछ पंगा होना चाहिए। और मेरे को नजर ही आ रहा है अमेरिका की मार्केट ओवर एग्जॉस्टेड है। अमेरिका ने 2 3 रेट कट किए, इमीडिएटली वहां पे रिसेशन आ जाएगा और वही कारण होगा मंडी ठुकने का। As per backtesting, most of the bull runs have started in the month of March and ended in September. तो जो मैंने अभी आपको बैक टेस्टिंग दिखाई है 2012, 2005 और 2023, इन सब में जो बुल रन स्टार्ट हुआ है बॉटम से, वो मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल में ही हुआ है। सो इंश्योर दैट, एंड March 21st, we are in March right now. March 21 is also, a special date. March 21 and September 21. These are some special dates according to the planetary dates. यहां से जो भी मूवमेंट चलती है तो थोड़ी अच्छी चलती है। कहने का मतलब, आई फील एंड आई सी ऑन दी चार्ट्स 2025 में मार्च से लेके अटिल सितंबर देयर कैन बी सम अपसाइड इन द मार्केट, एंड डाउनसाइड जो भी शुरू होगी 2026 में ही होगी। एज पर द बैक टेस्टिंग, मोस्ट ऑफ द बुल रन, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। इफ यू इन्वेस्ट इन अ हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी बिफोर अ स्टार्ट ऑफ द बुल रन, आई हैव शोन यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस।
bull run or bottom as per the banner chart, then chances are that you will make a minimum of 10x of your capital in less than 2 years. If you invest in a high growth company, which is a mid cap company, then there are chances that you will triple your money in 2 years. मैं आपको अपना एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ. मैंने 2.5 करोड़ रुपए बनाए हैं इन लास्ट 2 years. इन 2 करोड़ 25 लाख बनाया टू बी प्रिसाइज, मेरे और मेरे वाइफ की अकाउंट में, ओनली इन वन स्टॉक विच इज मोतीलाल ओसवाल. और मैंने 50 लाख रुपए बनाए हैं औरो फार्मा में, वो मेरा 3x हो गया. अगेन आई पुट द मनी इन 2023 अप्रैल ओनली. और अमर राजा के अंदर भी मैंने 3x किया है, 2x पैसे बनाए हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, उसमें भी मेरा 50 लाख बना है. न्यूजेन में भी बना है. सो मेड लॉट ऑफ मनी, यूज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द बुल रन, लास्ट बुल रन. सो नाउ आई एम अवेयर, आई एम नॉट गोइंग टू पुट मोर मनी. तो जो जितनी पैसे डले हुए मार्केट में वो डले रहने दूंगा, क्योंकि आई डोंट नीड द मनी फॉर नेक्स्ट 10 years. दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ माई पोर्टफोलियो. सो द नेक्स्ट इज, if you invest in a good large cap after a large cap stock after a big crash, then there are chances that you will gain 30 to 200% during the bull times. ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व लास्ट 4 years में 3-4-5x हो गए बॉटम से. और 2023 में कुछ स्टॉक्स निफ्टी के बहुत सारे बढ़ गए हैं. बेल निफ्टी में आ गया है, बेल 2-3x हो चुका है 2022 के लो से. सो एज वी आर एडवांसिंग इन दी वर्ल्ड, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूँ कि ये बता देता हूँ फिर भी, द टाइमलाइंस ऑफ द लेंथ्स ऑफ क्रैशेस हैज बीन रिड्यूसिंग. जैसे हम ओवर द ईयर्स अपनी पूरी दुनिया में एडवांस कर रहे हैं, तो टाइमलाइंस ऑफ द क्रैशेस हैज बीन रिड्यूसिंग. ईयर 2000 क्रैश बॉटम वाज मेड इन 2003. Year 2008 bottom was made in 2009, and year 2020 bottom was made in 2020 itself. Discussed once already. If you can find a bottom after crash and you invest in the markets with bulk money, so this is what I'm going to do in next 10 years. जब भी बॉटम बनेगा तो मैं ढेर सारा पैसा अच्छी चुनी कंपनियों में डाल दूंगा. Bulk money immediately after crash and you stay invested in good companies, chances are that you will make a lifetime wealth in just 4-5 years. मैंने 4-5 साल में पैसे कैसे बनते हैं आपको 5-6 एग्जांपल्स ऑलरेडी बता दिए हैं एस इन्वेस्टर्स के. ऐसे मैं आपको 25 और एग्जांपल्स बता सकता हूं, बट अगेन ड्यू टू द टाइम पॉसिटी आई हैव नॉट शोन हियर. Next 3 bull runs are now starting in the year 2032, 2039 and 2050. So the people who are young and who have the vision of going forward for next 20 years, like our PM has a vision for India for 2047, Viksit Bharat. I also have a vision for next 20-25 years, certain vision. So you should know that when are the next bull runs coming. You have to be invested. आपको मिनिमम 2 बुल रन्स के अंदर पार्ट लेना पड़ेगा to make lot of wealth. Next 3 bear runs are starting from 2026, which is just around the corner. Then next is 2034. 2034 is a top which is made at the B level. और 2035 अगर आपको मैं ध्यान से बताऊं तो वो पैनिक क्रैश है, आप अपने आप एक बार चार्ट देख लेना. और next is 2043. So next 3 bull runs and next 3 bear runs are already mentioned. Next panic and big crashes are predicted in 2035 and 2053. अगले 25 साल में 2 panic crashes ही नजर आ रहे हैं, तो ये वाले 2. We don't have a massive bull run in the near future, so expect normal returns for a year and not multi-bagger returns, and thereafter negative returns for 2 years from the market until 2029. So this could be 2028 or 2029. The best bull run in Banner chart is having 4 to 5 years of life. Now next that 4 to 5 years वाला जो शुरू हो रहा है वो 2039 में ही शुरू हो रहा है. ये भी मैं आपको एक बार सिर्फ बता देता हूँ. मैंने आपको एक एग्जांपल बताना है इस इन्वेस्टर का ट्रेंड लाइन में, और ये बताना है कि अगला 4-5 साल का 2039 में क्यों शुरू हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बिफोर द क्लोज. सो व्हाट आई विल डू, आई एम शेयरिंग. मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्या करूंगा इस चार्ट से और आप लोगों को क्या करना है आपने खुद देखना है. सिंस अपॉर्चुनिटी मीट्स द प्रिपेयर्ड, I will amass my fresh capital for next 3 years and introduce heavy capital by 2028 only.
and will try to do 10x as per the banner chart and as per my knowledge. I will keep hunting for excellent small caps and micro caps and will invest into them and make a second huge leap in my wealth generation journey. I have already started my wealth generation journey since COVID. Have taken one step in last 4 years. The second step is I am going to take in 2028. Exit and entries are very important. Firstly, I might empty my satellite portfolio by 2026. As I told you, 2026 में जो भी पैसे हैं वो देखेंगे तब की तब, जब टॉप नजर आएगा, वहां से गिरनी शुरू होगी, तब कितने पैसे बाहर निकालने हैं वो देखेंगे. एंड आई विल नॉट मिस द 2028 एंट्री अंटिल एंड 2035 एग्जिट. 2035 में तो पक्का बाहर निकलना ही है अकॉर्डिंग टू दैट. अब वो देखेंगे जब 8-9 साल बाद आएगी सिचुएशन, बट आएगी जरूर वो. I will keep guiding my paid community members for the best and the worst times. Also will guide when and which stock to buy with proper allocation as per our system and when to exit. So this is what I'm going to do. The big question arises now, what will you do? आप लोग क्या करेंगे जो आप सुन रहे हैं ये सब सुनने के बाद? अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो या तो आपको म्यूचुअल फंड्स में रहना चाहिए. सो लॉन्ग डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड कैन मेक यू लॉट ऑफ मनी. 17-18-15% मिल जाएगा. और अगर आपको ये एस इन्वेस्टर्स की तरह बड़े बड़े पैसे बनाने हैं, then probably, if God permits, we will make a lot of money in the long term. You can contact us and I will share you the workshop of कि हम कैसे हैंडल करते हैं, हैंड होल्डिंग कैसे करते हैं. बट अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, एक लॉन्ग विजन के साथ ही आना. अगले 2-3 साल अच्छे नहीं हैं, हो सकता है आपको फीस पे करनी पड़े, बट वो साल अच्छे ना हो. बट 1 या 2 साल ही आपकी फीस 8-10 साल की बाहर निकाल देंगे. दिस इज आई विश टू से. Now, lastly, Gautam, give me 1 minute. I'm going to show you Ashish Kacholia ka chart. So, Ashish, Shaley Engineering. So, if you see on my screen, Shaley Engineering, I will go. ये ये पहले आप ध्यान से देखेंगे, ये लाइन में 10% स्टॉक होल्ड करते थे. धीरे धीरे इन्होंने 5.2 रिड्यूस कर दी और 419 करोड़ रुपए का अभी भी होल्ड कर रहे हैं इवन आफ्टर रिडक्शन. अब ध्यान से देखें, इन्होंने पैसा डाला कब था. इन्होंने ये पैसा, नीचे की लाइन देखें, दिसंबर 2015 में डाला था. इन्होंने ये 10 लाख शेयर लिए थे, 12% ऑफ द कंपनी का उठा लिया था. 12% ऑफ द कंपनी उठा लिया और धीरे 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 इन्होंने अपना स्टेक 2-3 नामों में डिवाइड कर दिया. अब हम चार्ट पे देखते हैं. वी गो टू शेली इंजीनियरिंग. So Shaley Engineering and Plastic. Oh, ये NSE है. We go to BSE. ये ध्यान से देखें, 2014 के लो का प्राइस 9 रुपये 90 पैसे था शेली इंजीनियरिंग का, और 2018 में 31.5 टाइम्स हो गया. 31.5 गुना हो गया ये 5 साल में. और इतना हैवी पैसा लगाया हुआ था, ये 9 रुपये से 310 रुपये हो गया. और उसके बाद 2 अक्टूबर 23 में इसका प्राइस था शेली इंजीनियरिंग का, ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं, 190 रुपये. 190 रुपये से 2 साल के अंदर 2024, दिस इज जनवरी 2023, और 1.5 साल के अंदर 2024 के अंदर अभी इसका प्राइस 1700 चल रहा है और इसका ऑल टाइम हाई 1900 लगा. So now you can well imagine that what research ace investors do, how do they invest, how do they hold companies for 2 bull runs, and what conviction they have, what study they have. And similarly, I want you guys to do, and similarly is what I am doing. So with this, I close my presentation, and question and answers are open. Gautam, see what is to be done. You can ask me, you can open the dice and let people should ask questions. Yeah, we'll take about 2 to 3 questions only. So thank you, Keshav ji, first of all, for such kind compliments to us. And anyone else, if they have a question, they can simply If you have any question, you can ask me, please. So, Vivek, I'm Keshav here. I have questions.
So what Tell you are me. saying is कि अभी bull run is going to start in June by June 2026 or means March 2025 में अभी bull run चालू हुआ है up to September 2025 or what do you think of ये this बुल move? रन नहीं है भैया, ये करेक्शन की एक अप ट्रेंड आएगा, 6 महीने, साल, 9 महीने तक लिव अप करेगा, ऊपर एक डबल ट्रिपल टॉप बनेगा, या निफ्टी 27,000 भी जा सकती है, वापस 26,200 भी जा सकती है, और वहां से गिर सकती है। और स्मॉल कैप भी बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। ये आप एक बात समझो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लास्ट 2 साल में, डू यू एग्री, ऑल दी रेलवे, ऑल दी PSUs, एवरीथिंग हैज गॉन 5 to 10x? डू यू एग्री विद मी? PSU banks तो नहीं बढ़े हैं last 2 years में अरे वैसे। बॉस, बैंक्स और को छोड़ो, तो बैंक्स उससे पहले बढ़ गए थे ना, नहीं फर्स्ट नहीं वन नहीं, में बढ़ गए PSU थे। enterprises तो बहुत बढ़े हैं, और भैया भैया PSU भैया, enterprises पे सारा अंडरस्टैंड बुल रन आया अंडरस्टैंड, है। हेलो हेलो हेलो। वो 2021 से, PNB हाँ बैंक 2021 से 25 रुपए से चलते चलते 132 हो गया था। वो हाँ, हो गया था। 2023 से पहले बढ़ गए थे। तो जब हाँ बुल रन आता है तो बुल रन सेक्टर वाइज सेक्टर चलता है। PSU बैंक्स हाँ, पहले बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, 6 महीने से गिर करेक्ट रहे हैं। नाउ करेक्ट करेक्ट। in this line, now हाँ PSU and those जो पहले बड़े थे वो दोबारा से जो गिर गए हैं अब 6 महीने में 50% हाँ गिर गए हैं। अब थोड़ा हाँ, थोड़ा वो बढ़ेंगे, बट वो करेक्ट। कहाँ पे टॉप लगाएंगे? वो वापस अपने 132, 138, यूनियन बैंक अपने 170 पे टॉप लगाएगा, हो सकता है 200 हाँ चले जाए, और वहां से फिर हाँ गिरना शुरू हो जाएंगे। आई एम हाँ ओनली सेइंग बी अवेयर, आई एम नॉट सेइंग पैसे हाँ नहीं बनेंगे, आई एम सेइंग पैसे हाँ बनेंगे, बट कुछ पॉकेट्स में बनेंगे। सो बी क्वाइट अवेयर। और पर 2026 में एनी गिवन टाइम, जनवरी भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, नो वन कैन फिगर आउट दैट। 6 मंथ्स हाँ हियर एंड देयर पटाखा बोलेगा, और बड़ा अच्छा पटाखा बोलेगा, तब सब फंस जाएंगे, फिर किसी से हाँ निकला नहीं जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एंड दिस इज आई नॉट गॉट मी इट। तो वो सेइंग, दिस इज माइंडसेट नॉट होना मी चाहिए कि सेइंग। निकल जाओ, ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, कॉशियस रहो इन 2026। एक बार ये जो वापस बढ़ जाए, देन द माइंडसेट शुड बी टू गेट आउट एंड बी सेफ एंड कॉशियस, दैट इज व्हाट इट इज यू आर सेइंग। फिर जब भी It's not नेक्स्ट जो me बुल रन saying. आएगा। It's हाँ not me saying. I am हाँ, reading out I am decoding yeah, the this is chart. what the chart reading indicate कि 2026 में you should be cautious and Yeah, be more towards putting your money in safe assets like a FD or something. yeah. And the chart is 90% accurate. And हाँ, got it. basically, हाँ the chart is nothing else. It's law of nature. हाँ 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 हाँ, got it विवेक, got it। Yeah, yeah. Any नहीं more तो questions? 2020 से अपने इतना पैसा कमाए हैं 5 साल, तो 1-2 साल तो वो करेगा ही ना यार। It's going to Exactly, give you that kind of a exactly. muted return. You can't expect every year is going to be a bull run and every year going to make money. That doesn't work like that. 1-2 साल it is Exactly. going to breathe and then फिर वापस बढ़ेगा, ऐसा भी। That is what is the आप chart ध्यान also से saying. समझो। सो व्हाट यू आर सेइंग, आई विल ऐड ऑन टू इट, ध्यान से समझो। 2003 से बुल रन शुरू हुआ, और 2008 में 5 साल के बाद टॉप लग गया। एम आई राइट? दिस इज द Correct हिस्ट्री, correct दिस इज द हिस्ट्री। correct। अब हाँ, 5 साल के बुल रन के बाद आप 5 साल और चाहते हो कि बुल रन हो जाए? ऐसा तो होगा नहीं। नहीं